Hello dear student, I am Sakshi Sharma from NIT Pharmacy Institute. Today I am going to teach you about the opioid analgesics and opioid antagonists. Okay, now we have to study about first of all what are analgesics. Okay, analgesics मतलब क्या होता है हमारा, which they are also called as the painkillers. ओके, सो एनाल्जेसिक्स दीज आर अ ड्रग विच मेनली रिलीव्स द पेन, जो हमारे पेन को कम कर देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे एनाल्जेसिक्स बोला जाता है. मीन्स दीज आर द पेन किलर्स एंड विद हाउ दे रिलीव द पेन बाय लॉस द कॉन्शियसनेस. जो कॉन्शियसनेस होता है उसको हमारा क्या कर देते हैं, वहाँ से बिल्कुल लॉस कर देते हैं. दैट्स वाई दे विल रिलीव द पेन एट दैट साइड. ओके, एनाल्जेसिक्स दे ओनली अफोर्ड द सिम्पोमैटिक रिलीफ फ्रॉम द पेन विदाउट अफेक्टिंग द कॉज. वो हमारे कॉज को कोई अफेक्ट नहीं करते. दे विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस अ सिम्पोमैटिक रिलीफ कॉज कर देते हैं हमारे पेन से. एनाल्जेसिक दे आर मेनली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी. First one is the opioid or morphine type of analgesic. Second one is the non-opioid or second one is the aspirin type of analgesics. Now we have to classify the analgesics. What are the classification on the analgesic based on the receptor occupation, how the receptor they will bind and the drug will bind with the receptor side. Or second one is the mixed agonist and antagonist effect. And third one is the antagonist. These are the antagonists of the opioid analgesics. First one is the based on the receptor, they are the agonist. In this there is subtypes. First one is the natural opium alkaloids. Second one is the synthetic opioids. Okay, in natural, as we all know, in natural these are the morphine and codeine will comes under this category of natural, and synthetic opioids are the pethidine, methadone, oxycodone and fentanyl, tramadol. These are the drug category which comes under the synthetic opioids. The second one is the category is the mixed agonist, means which mainly contain the both natural and the synthetic opioids. They are the mixed agonist, and the antagonist they are the pentazocine and nalbuphine and butorphanol. And third one is the antagonist. Antagonists are the naloxone, naltrexone. These are the drugs category which comes under the antagonist of the opioid analgesics. Now the analgesics, opioids can be classified depending on the source. जो opioids analgesics होते हैं उनको हम लोग define करते हैं on the basic of their source. First one is the natural opioid analgesics, in which morphine and codeine or noscapine will become. And second one is the semi-synthetic derivative, in which heroin, oxymorphone, these comes. Okay, third one is the synthetic opioids, in which there is pethidine, methadone, fentanyl. These drugs will come. Now what is the mechanism of action of morphine? This is very important. What is the mechanism of action of morphine? Morphine they will directly act on the G protein couple. मतलब जो हमारे morphine होते हैं they will act on the G protein couple, receptor में act करते हैं, and by acting on these receptor they will stimulate. जैसे ही हमारे वो इन receptors में आके हमारे जुड़ते हैं they will stimulate these receptor. इन जो receptors होता है इनको stimulate करते हैं, and they will inhibit the adenyl cyclase. जो adenyl cyclase होता है उसको हमारा क्या करते हैं, inhibit कर देते हैं, which ultimately decreases the intracellular calcium formation. which ultimately decreases the intracellular cyclic AMP formation. Means क्या हुआ, जो morphine होते हैं they will bind with the G protein couple receptor के साथ bind करते हैं. Then after binding these receptor they will stimulate these receptor. इन जो रिसेप्टर्स होता है इनको स्टिमुलेट करते हैं, एंड दे विल इनिबिट द एडिनाइल साइक्लेस. एडिनाइल साइक्लेस को क्या करते हैं, हमारे ये इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्रासेल्युलर साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है. एंड ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ दिस इंट्रासेल्युलर साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन अल्टीमेटली इट विल फैसिलिटेट, जिसकी वजह से जो पोटेशियम चैनल होता है वो क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है, एंड इट विल इनिबिट कैल्शियम चैनल. और जो हमारा ओपनिंग कैल्शियम चैनल की जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है, और पोटेशियम चैनल जो होता है हमारा वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम तो हमारा डिक्रीज हो गया. और कैल्शियम हमारा क्या होता है, मेन हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो भी हमारा, जैसे ही हमारा कैल्शियम रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, हमारे रिलीज हो जाते हैं, है ना.
लेकिन हमारा क्या हुआ, कैल्शियम चैनल्स ही हमारे ओपन नहीं हुए हैं, कैल्शियम चैनल्स ओपन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और इस कैल्शियम के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, देयर इज डिक्रीज रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विल गेट डिक्रीज्ड, एंड ड्यू टू द डिक्रीज रिलीज ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर इट विल डिक्रीजेज द विसरल, जो विसरल पेन होगा हमारा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। If you will see in this image, I have told you that the morphine it will bind to the site in, ये हमारा क्या करेगा, जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर साइड होगा वहाँ पे बाइंड करेगा। जैसे ही वो हमारा G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, हमारा क्या होगा, इट विल स्टिमुलेट दिस रिसेप्टर, इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, एंड ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ दिस रिसेप्टर इट विल इनिबिट द एडिनाइल, जो एडिनाइल साइक्लेज होगा हमारा, एडिनाइल साइक्लेज को क्या करेगा हमारा, ये इनिबिट कर देगा। एडिनाइल साइक्लेज के इनिबिशन की वजह से हमारा क्या होगा, जो इंट्रासेल्युलर साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हमारा एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, हमारा साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, लेकिन ये हमारा एडिनाइल साइक्लेज हमारा इनिबिट हो रहा है, जिसकी वजह से साइक्लिक फॉर्मेशन होगी वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा साइक्लिक फॉर्मेशन जो हमारा डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पोटेशियम चैनल्स होंगे वो हमारे ओपन हो जाएंगे। दीज पोटेशियम चैनल्स इट विल गेट ओपन, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन कैल्शियम चैनल्स जो हो जाएंगे वो हमारे बंद हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ड्यू टू द, जैसे ही हमारा मॉर्फिन क्या होगा, हमारा साइट में रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड करेगा, जैसे ही हमारा रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड करेगा, मींस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ जैसे ही हमारा मॉर्फिन जो होगा हमारा वो बाइंड करेगा, वो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारे रिसेप्टर जो साइक्लिक एएमपी और एडिनाइल साइक्लेज होगा उसको हमारा इनिबिट कर देगा, और एडिनाइल साइक्लेज इनिबिट होगा तो साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी। साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन डिक्रीज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारा पोटेशियम चैनल्स होंगे इट विल गेट ओपन, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम चैनल जो वोल्टेज रेटेड कैल्शियम चैनल्स होंगे हमारे वो बंद हो जाएंगे। ओके, देयर इज अ इनवर्ट रेसिडिफाइंग पोटेशियम चैनल्स इट विल गेट ओपन, एंड द कैल्शियम चैनल्स इट विल गेट क्लोज, और कैल्शियम चैनल्स की क्लोज होने की वजह से हमारा क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन द कैल्शियम, जैसे मैंने आपको बताया था कैल्शियम डिक्रीज होगा, देयर इज अ डिक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, वहां से रिलीज नहीं होंगे, एंड इट विल अल्टीमेटली डिक्रीजेस द पेन। ओके, एंड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ दिस कैल्शियम साइक्लिक एएमपी, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है हमारा, देयर इज डिक्रीज इन सलाइवेशन डिक्रीज हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन द गैस्ट्रिक मोटेलिटी इट विल गेट डिक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन द जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है इट विल गेट इंक्रीज, देयर इज डिक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है, देयर इज डिक्रीज इन द इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज हो जा रहा है हमारा पेनक्रियास से। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट विच कैन बी सीन व्हेन द मॉर्फिन इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर साइड। Now, what are the pharmacological action of these morphine can be seen? First one is the central nervous system. What are the effect of these morphine seen in the central nervous system? First one is the analgesics. Okay, morphine, these are the potent analgesic and they will relieve the pain without producing the loss of consciousness. Without producing any loss of consciousness, these morphine they are produces the potent analgesic and they will relieve the pain. Okay, and at the higher doses, it relieve the severe pain as well एज दैट ऑफ द बिलियरी कॉलिक, जो बिलियरी कॉलिक में जो सीवियर पेन प्रोड्यूस होगा उसको भी हमारा क्या करेगा, जो मॉर्फिन होगा वो हमारा डिक्रीज कर देगा। सेकेंड वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ यूफोरिया, सेडेशन एंड हाइपोसिस कंडीशन भी प्रोड्यूस करेगा हमारा मॉर्फिन ड्यू टू द रैपिड, अगर हम लोग रैपिड आईवी इंजेक्शन प्रोड्यूस करते हैं हमारा, या इफ वी आर एडमिनिस्ट्रिंग द रैपिड आईवी इंजेक्शन टू द इंडिविजुअल और द पेशेंट, इट विल प्रोड्यूस अ वार्म फ्लशिंग ऑफ द स्किन, वार्म फ्लशिंग होगी हमारी स्किन में, एंड देयर इज अ इमेंसली प्लेजरेबल सेंसेशन इन द लोअर, जो लोअर एब्डोमेन रीजन होगा उसमें हमारा क्या होगा, इमेंसली प्लेजरेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होगी हमारी लोअर एब्डोमेन रीजन में अबाउट 45 सेकेंड तक के लिए, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ ड्राउजीनेस भी प्रोड्यूस करेगा हमारा, एक कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इनडिफरेंशिएट टू द सराउंडिंग से हमारा इनडिफरेंशिएट कर देगा।
Now what are these are the effect which can be seen in the CNS. Now the other effect which can be seen in the respiration. Morphine, it will produces the respiratory depression produce करेगा. It will directly depress the respiratory center. जो brain stem में जो हमारे respiratory centers होंगे उसको क्या करेंगे, हमारे directly inhibit कर देंगे और directly क्या कर देंगे, depress कर देंगे. And death from morphine poisoning is almost always due to the respiratory arrest की वजह से हमारा क्या होता है, death हो जाती है हमारी morphine poisoning की वजह से हमारा. Fourth one is the cuff center. What are the effect of morphine in the cuff center? It directly depress the morphine क्या करता है हमारा, it will directly depress the cuff center. Cuff centers को directly हमारा क्या करता है, depress कर देता है and thereby it will suppress the cough. That's why these morphine they are mainly given as a cough सप्रेसेंट, कफ सप्रेसेंट की तरह या फिर एंटी ट्यूसिव में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो कफ सेंटर्स होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्टली डिप्रेस कर देता है एंड देवर सप्रेस करता है, हमारा कफ को सप्रेस करता है. और ओपियोइड शुड बी यूज्ड, दीज ओपियोइड शुड बी यूज्ड एज एंटी ट्यूसिव की तरह यूज़ करते हैं ओनली इन द ड्राई कफ. जब ड्राई कफ होता है तब हमारा मॉर्फिन को क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं. फिफ्थ वन इज द नोजिया एंड एमेसिस इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है हमारा मॉर्फिन. दीज मॉर्फिन दे विल डायरेक्टली स्टिमुलेट जो CTZ होता है हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है हमारा, उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है हमारा मॉर्फिन. उसके स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, इट विल प्रोड्यूसेस द वॉमिटिंग प्रोड्यूस करता है, नोजिया प्रोड्यूस करता है. एंड इन द हाइयर डोजेस में क्या करता है, इट विल डिप्रेस द वॉमिटिंग सेंटर को डिप्रेस कर देता है एंड हेंस देयर इज नो वॉमिटिंग इन द पॉइजनिंग में हमारी कोई वॉमिटिंग नहीं होती है. Now these are the central effect. Now we have to study about the peripheral action of these morphine. First one is the cardiovascular system. What is the effect of peripherally of these morphine in the cardiovascular system? इन थेराप्यूटिक डोसेस द मॉर्फिन दे विल प्रोड्यूसेस द हाइपोटेंशन. जो मॉर्फिन होता है हमारा वो हमारा क्या करता है, एट द थेराप्यूटिक डोसेस दीज मॉर्फिन दे मेनली प्रोड्यूस द हाइपोटेंशन बाय डायरेक्ट पेरिफेरल वेसोडाइलेशन एंड दे विल ऑल्सो इनिबिट द जो बैरो सेंटर्स होते हैं हमारे, दे विल ऑल्सो इनिबिट दीज बैरो सेंटर रिफ्लेक्सेस. दिस विल कम एट द low dose but at the higher dosage it will causes the depression of vasomotor center. जो vasomotor centers होता है हमारा उनको क्या करता है हमारा डिप्रेस्ड कर देता है एंड हिस्टामिन रिलीज बोथ contributing to और जो हिस्टामिन and also stimulate the release of histamine and due to the release of these histamine they mainly produces a fall in BP. Okay, but these are the effect can be seen in the heart. Now the another effect in the GIT, these morphine or the opioids they will decreases the motility of the gut. They will decrease the motility means the movement of the movement in the gut and stomach. They will produces the gastric motility is decreased which mainly result in increase the gastric empty time. जो gastric empty time होता है उसको decrease करेगा due to decreased in the motility, क्योंकि movement नहीं होगा जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, it ultimately decreases the gastric emptying time and गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी हमारा क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, मीन्स HCl के सिक्रीशन को भी हमारा कम कर देगा. नाउ इन द इंटेस्टाइन मॉर्फिन दे विल डिमिनिश ऑल द सिक्रीशन, जितने भी हमारे ऑल द सिक्रीशंस विच विल हैपन इन द इंटेस्टाइन, दीज मॉर्फिन दे विल डिमिनिश द सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइनल पार्ट एंड दे विल डिले द बिकॉज as we all know that the various enzymes they will get secreted in the intestinal part and these enzymes or these secreted substances they mainly help in the digestion of these food. And due to the morphine intake these morphine they will diminish the secretion delay, जो diminish कर देगा हमारा secretion को हमारा नहीं होने देगा which ultimately delay the digestion नहीं होगा हमारा food का in the small intestinal part में. Now in the another effect which can be seen in the morphine is the smooth muscles. What are the effect which can be seen in the smooth muscles? First one is the biliary tract. Morphine they will produces a spasm of sphincter of ODI. They will produce a spasm of sphincter in the ODI. Atropine they will partially antagonize the effect of these morphines. Okay, while
Opioid antagonists, they will relieve it. Okay, what is the effect in the urinary bladder? Opioids or the morphine, they will inhibit the urinary voiding reflexes. urinary voiding का जो reflex होगा उसको हमारा क्या करेगा, inhibit कर देगा as the result of the urine, जिसकी वजह से ultimately it will produces the more urinary retentions, which is especially in the elderly males with prostatic, the person or the males, elder males who are already suffering from the prostatic hypertrophy. These morphine, they will increases the retention of the urine के retention को increase कर देगा हमारा. Okay, now what is the effect in the uterus? There is no significant effect can be seen in the uterus by taking these morphine, but they may they prolong the labor at the higher doses. They prolong the labor pain, जो labor pain होगा उसको increase कर देगा हमारा. What is the effect in the bronchi? Morphine, they will causes the release of the histamine, as I have already told you that the morphine, they will increases the release of histamine. Histamine के release को बढ़ा देगा from the mast cells. Ultimately ये क्या करेगा हमारा ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, जो ब्रोंकियल मसल्स होंगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करेगा. Now, what are the pharmacokinetic of these morphine? They can be given orally. Absorption of the morphine is completely slow and incomplete. Morphine, they will undergo the first pass metabolism can be seen. Viability is 20 to 40%. Morphine, they can be easily metabolized in the liver by the glucuronide conjugation की वजह से हमारा इसका metabolism show होता है. And the active metabolite morphine 6 glucuronide is more potent than, this is the active metabolite of the morphine and it is more potent than morphine and this is excreted through the kidney से excrete out हो सकता है. Now, what are the adverse effect of these morphine? They may produces the aponia condition. Administration, due to the administration of these morphine to the mother, they will produces the labor pain. Labor pain produce करता है हमारा at a high doses में, and they will easily crosses the placenta को cross कर देता है. Crosses the aponia in the newborn में aponia cross कर देता है. Because morphine, they will crosses the placenta, they will easily reaches the, जो fetal का brain होता है उसमें easily reach हो जाता है, पहुँच जाता है and अटेन, एक हाई लेवल को अटेन कर लेता है हमारा. एंड दे विल कॉजेज द कंडीशन कॉल एपोनिया. एपोनिया कंडीशन कॉज करता है हमारा फीटल में. एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है हमारा मॉर्फिन, लाइक स्किन रैशेस कॉज करता है, डाइसोरिया कॉज करता है, विच इज अ स्टेट ऑफ अनहैप्पी, मतलब बीइंग अनहैप्पी, ऐसा लगता है कि वी आर फीलिंग अनहैप्पी. दिस इज नोन एज डाइसोरिया कंडीशन. डिजीनेस प्रोड्यूस करता है, हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है, स्किन रैशेस प्रोड्यूस करता है. नाउ what are the tolerance? As we know what is tolerance, tolerance is defined as a capacity of body to endure and to become less responsiveness to a substance. टॉलरेंस हम लोग क्या समझते हैं? टॉलरेंस हमारी कब जनरेट होती है, मतलब जितनी अमाउंट हम लोग ड्रग की ले रहे हैं उस अमाउंट में हम लोग को ड्रग का इफेक्ट ना शो होके हमें क्या करना पड़ता है, हाइयर डोज लेनी पड़ती है ड्रग की, जिसकी वजह से वो इतना ही पहले जितना ही रिस्पॉन्स शो करेगी. ओके, दिस इज नोन एज ए टॉलरेंस. टॉलरेंस इट इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी, the body and the capacity of our body to endure or to become the less responsiveness. हम जिसकी वजह से हमारा less response शो करती है हमारी उतनी डोज में, उतने सब्सटेंस की डोज में हमारी जो ड्रग शो करती है हमारी less response शो करती है. That's why we have to take the higher dose of these drugs. Okay, this is known as the tolerance. And the lethal dose of the morphine is about 250 mg and addict can tolerate the, जो addict हमारा tolerate कर सकता है morphine को in GM. वट आर द एडवर्स इफेक्ट? डिपेंडेंस भी कॉज करता है हमारा मॉर्फिन जो होता है. इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द यूफोरिया कंडीशन प्रोड्यूस करता है एंड मेक्स द ड्रग ऑफ एडिक्शन. एडिक्शन प्रोड्यूस कर देता है हमारा पर्सन में. एंड ओपियोइड्स दे विल प्रोड्यूसेस बोथ द फिजियोलॉजिकल, मतलब दे विल दीज ओपियोइड्स एगनिस्ट दे विल प्रोड्यूसेस द फिजियोलॉजिकल एज वेल एज द फिजिकल, बोथ टाइप ऑफ डिपेंडेंस को प्रोड्यूस करता है हमारा ओपियोइड्स को. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द एक्यूट मॉर्फिन poisoning treatment, because morphine poisoning is very common. And how to treat this acute morphine poisoning? First one is the
positive pressure respiration, we have to maintain the positive pressure respiration, we have to maintenance of the BP. There is a gastric lavage with potassium permanganate can be given, potassium permanganate can be given to remove the unabsorbed, the drug which is not, the morphine which is not absorbed in the GI, these potassium permanganate can be given as a drug, and these drugs may absorb करते हैं हमारी वो ड्रग को, हमारा गैस्ट्रिक लेवेज की तरह यूज़ होता है। हमारा स्पेसिफिक एंटीडोट लाइक नैलोक्सोन दिया जाता है हमारा एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.4 to 0.8 mg। ओके, IV रिपीटेड एवरी 10 to 15 मिनट्स में हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू रिपीट दीज ड्रग्स। नाउ ओपियोइड्स, अदर ओपियोइड्स जो हम लोग पढ़ते हैं हमारा, फर्स्ट वन इज द हेरोइन एक अदर ओपियोइड्स हमारा, इट इज़ कन्वर्टेड टू मॉर्फिन व्हेन वी आर कंज्यूमिंग द हेरोइन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द मॉर्फिन इन आवर बॉडी एंड इट हैज़ अ हायर लिपिड सॉल्युबिलिटी जो हम लोग बोलेंगे, इट हैज़ अ हायर लिपिड सॉल्युबिलिटी मॉर्फिन के कंपैरिजन में हेरोइन इट इज़ अ हायर लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड इट गिव्स यूफोरिक इफेक्ट बहुत जल्दी प्रोड्यूस करती है हमारा, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज जैसा एनाल्जेसिक्स की तरह भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ द कोडिन भी हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इट इज़ इफेक्टिव ओरली बहुत इफेक्टिव होती है हमारी ड्रग एंड वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं हमारी, एंड इट दीज कोडिन दे विल डिप्रेस द कफ सेंटर्स को डिप्रेस करती है। डेट वाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज कोडिन दे आर मेनली यूज एज द एंटी ट्यूसिव की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली फॉर द ड्राई कफ में हम लोग यूज़ करते हैं हमारा इस कोडिन को। ओके, दीज कोडिन इट इज़ इफेक्टिव ओरली इफेक्ट होती हैं हमारी, वेल एब्जॉर्ब्ड होती हैं हमारी, इट विल डिप्रेस जो हमारा कफ सेंटर, इट विल डिप्रेस द कफ सेंटर को डिप्रेस करती है इन अ सब एनाल्जेसिक डोजेस में हमारा, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ एंटी ट्यूसिव की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं बिकॉज इट विल डिप्रेसेस द कफ सेंटर्स इन द ब्रेन। ओके, नाउ इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद पैरासीटामोल के साथ भी हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं इसे फॉर द एनाल्जेसिक इफेक्ट। नाउ फोर्थ one is the dextromethorphan. Okay, dextromethorphan it is a drug which is mainly act by centrally act करता है to elevate the threshold level, जो कफिंग का threshold level होता है इसको increase करता है, and it is effective as, ये भी हमारा उतना ही इफेक्टिव होता है जितना हमारा कोडिन होता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन आप लोग अगर देखेंगे, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन बहुत ज़्यादा हमारे जो ड्रग्स होती हैं, हमारी जो कफ रिलीविंग ड्रग्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। इसका भी ये भी क्या करता है, हमारा जो कफ सेंटर्स होते हैं उसको डिप्रेस कर देता है। इसका भी एक्शन इट है शो द सिमिलर एक्शन एज दैट ऑफ द कोडिन। Another are the tramadol, it is effective, these are also effective analgesic and it is a weak opioid agonist and they will block the reuptake of the serotonin के reuptake को block कर देता है in the CNS and they will also inhibit the function of noradrenaline transporter के function को भी हमारा क्या करता है, हमारा ये inhibit करता है। Now fifth one is the पैथेडीन it is a corneal anesthetic produce बोलते हैं हमारे प्रोड्यूस करते हैं हमारे ये, इट हैज़ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारा पैथेडीन एंड इट कॉजेज द ड्राई माउथ। मेन जो एडवर्स इफेक्ट विच कैन बी सीन बाय कंज्यूमिंग दिस पैथेडीन दैट इट मेनली प्रोड्यूसेस ड्राई माउथ एंड ब्लरिंग ऑफ द विजन को ब्लर कर देता है और ड्राई माउथ प्रोड्यूस करता है। डोज एंड द यूज 25 to 100 mg IM इंट्रामस्कुलरली या सबक्यूटेनियसली ये ड्रग दी जाती है। इट इज़ यूज एज एनाल्जेसिक्स की तरह यूज़ करती है इन द विसरल पेन में, गिव्स एज पर प्री एनास्थेटिक मेडिकेशंस में भी हमारा पैथेडीन यूज होता है एज अ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। एडवर्स इफेक्ट लाइक कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, टैकीकार्डिया कैन बी सीन इन द बाय कंज्यूमिंग दिस पैथेडीन। Methadone, it is also a synthetic opioids and mu receptor agonist होता है। Its action is very much similar to the morphine and it is an effective analgesic. This is also an effective analgesic and is more effective when administered. This shows more effective action as it is administered through via oral route, rectal route, subcutaneous route, IV route or spinal route. Okay, and it is effective for certain. This drug is also effective for certain cancer pain के लिए हमारे जो हमारा यूज होता है हमारा एज अ एनाल्जेसिक्स, उसमें हम मेथाडोन यूज़ कर सकते हैं विच आर नॉट रिलीव बाय मॉर्फिन हमारा जो कैंसर पेन होता है उसको उसका जो दर्द होता है उसको रिलीफ नहीं कर पाता। इन दैट केस वी आर गिविंग द मेथाडोन हम मेनली यूज़ इन द कैंसर पेन रिलीव्स में हमारा यूज़ कर सकते हैं हमारा मेथाडोन को।
इट इज़ अ लॉन्ग एक्शन ऑफ ड्रग होता है। डोज हमारी 10 mg ओरल और इंट्रामस्कुलर हम लोग इसको दे सकते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? एनाल्जेसिक मॉर्फिन, इट इज़ मोर इफेक्टिव एनाल्जेसिक एंड दे प्रोड्यूस सिम्पोमेटिक इफेक्ट। कफ में हमारा यूज़ होता है। मॉर्फिन इज इफेक्टिव एज एंटीट्यूसिव की तरह यूज़ कर सकते हैं हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक को। सिडेशन में यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फिन इट विल रिलीव द एंजाइटी कंडीशन को रिलीव कर दिया। डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। एज अ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशंस में हमारा ये यूज़ कर सकते हैं। Now what are the opioid antagonists? Now we have talked about the agonist जो हमारा एक्शन जो मॉर्फिन लाइक एक्शन जो शो करेगा हमारा। and now what are the antagonists? First one is the naloxone. These are the pure antagonists and they will not produces any significant action. They will block the action of endogenous, जितने भी opioid पेप्टाइड एंडोमॉर्फिन्स होते हैं उनके एक्शन को क्या करता है हमारा, ये ब्लॉक कर देता है हमारा। इट एंटागनाइज द मॉर्फिन के एक्शन को एंटागनाइज कर देता है। स्पेशली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो प्रोड्यूस करता है उसको एंटागनाइज करता है। सिडेशन एक्शन को एंटागनाइज करता है। प्रेसिपिटेट मॉर्फिन जो हमारा विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं उसको हमारा क्या करता है, एंटागनाइज करता है। इट कैन बी गिवन ओरली दे सकते हैं एंड इट विल गो द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में हमारी ये ड्रग जाती है। हैंस इट इज गिवन बाय आईवी रूट से हम लोग इस ड्रग को देते हैं। डोज हमारी 0.4 mg IV दी जाती है एंड दीज आर द ड्रग विच इज मेनली यूज एज अ मॉर्फिन ओवरडोज में हम लोग इस ड्रग को दे सकते हैं एंड डायग्नोसिस ऑफ ओपियोइड डिपेंडेंस में। सेकंड वन इज द नेल्ट्रियोक्सोन्स हमारा, इट इज अनदर प्योर एंटागनिस्ट होता है। मोर पोटेंट होता है, दिस इज मोर पोटेंट देन नेलोक्सोन। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, 1 to 2 days का इसका ड्यूरेशन रहता है। वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, दीज नेल्ट्रियोक्सोन कैन बी एब्जॉर्ब्ड ओरली, वेल एब्जॉर्ब्ड बट अंडरगो दिस the main side you can say that the main साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग दैट इट विल गो द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में हमारी ये ड्रग चली जाती है। यूजेस दे मेनली प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन बी यूज फॉर द ओपियोइड ब्लॉकेज इन द पोस्ट एडिक्ट पर्सन्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।